Hello dear students, after the study of structure of contractile protein in our last lecture, now we are ready to study about the mechanism of the muscle contraction, and in the previous lecture we have studied that there are two types of protein which are involved in the muscle contraction, that are actin and the myosin. So there is a very famous theory that is called sliding filament theory, by the help of which we can explain the mechanism of the muscle contraction. There are lots of theory given by various biologists, but this is the most accepted theory, that is known as sliding filament theory. If I write it here for you, this is sliding filament theory. It is the most acceptable theory right now. And what it says, it says that contraction of a muscle fiber takes place by the sliding of the thin fibers, or you can say thin filaments, over the thick filament. Like we have studied that day, if you remember, that actin filaments are the thin filaments, whereas the myosin filaments are the thick filaments, like this. So what this theory says that the sliding of the thin fibers over the thick fibers, that means इस वाले के ऊपर ये thin fiber move करते हैं, slide करते हैं, and this is all about the muscle contraction theory. But it is not so simple कि we just wind it up in a 2 sentence. We have to study it, and for that we need certain explanation so that you can understand it. Now, what is muscle contraction theory? Is basically muscle contraction theory involves a number of biochemical changes, because biochemical changes आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी फंक्शंस होते हैं, they all are regulated by the certain kinds of enzymes, certain kinds of molecules. Either they are inorganic molecule or organic molecule, they are present because they activate that kinds of reaction. तो हमारे अंदर की होने वाली बॉडी के अंदर की सारी रिएक्शंस बेसिकली बायोकेमिकल रिएक्शंस ही कहलाते हैं. So what happens in this reaction? And before going into it, that means going into the proper mechanism, you have to understand the structure of a nerve and a muscle. I already told you in the previous lectures that if suppose I have drawn this muscle and this is the striated muscles having the striations on it. आपको पता है striated muscles का मतलब ही होता है कि they have striations. तो ये striations हैं इसके ऊपर इस तरह से. तो this is the structure of muscle which I have drawn it here. ये muscle हो गई आपकी complete. Now a nerve fiber is always connected with it, है ना. कोई भी nerve fiber इससे जरूर से attach होगा. This is a nerve fiber, not an arrow. तो ये nerve fiber, this is attached to this muscle. Always muscles are found in the connection of the nerves, because for example सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ व्हीकल, है ना. आप अपना कोई भी व्हीकल स्टार्ट करना चाहते हो, अपना एक्टिवा स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको पता है कि वो चीज़ पहले आपकी ब्रेन में स्टार्ट होती है ना, कि आपको लगता है कि मुझे ये गाड़ी स्टार्ट करनी है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपका ब्रेन एक मैसेज सेंड करता है आपकी हैंड की मसल्स को, सो दैट आप अपनी जो की है वो निकाल के पॉकेट से आप लगाओगे, और उसको आपका हाथ जो है वो ऑब्वियसली रोटेट होगा की को मूव कराने के लिए. तो ये काम जो आपने किया, वॉट एवर फंक्शन यू आर परफॉर्मिंग बाय योर हैंड्स, लेग्स, वॉट एवर मूवमेंट यू आर डूइंग, चाहे आप बुक खोल रहे हो, बैग में रख रहे हो, तो ये सारा कुछ आपको कौन बताता है? ब्रेन. बिकॉज ब्रेन हैज़ द पावर टू थिंक. ब्रेन आपका सोचता है कि मुझे बैग में बुक सब रखनी है, और उस रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर पास में ही पड़ी हैं तो आपको सिर्फ हैंड मूवमेंट्स के लिए वो मतलब मैसेज भेजेगा आपके हैंड्स में. तो मैसेज कैसे भेजा जाएगा? Message comes to the help of nerves, and these nerves are called as motor neurons, because motor neurons, you can define it like motor neurons carry signals from the central nervous system, that is brain, to the other parts of your body. Now understand what are the motor neuron system. Motor neuron system, what is it? I again repeat it, that motor neurons carry signals from the brain, or you can say central nervous system, to the other parts of your body, so that you can perform any function. तो उनका ये काम होता है केवल. यू कैन ऑल्सो से दैट नर्व इम्पल्स को ट्रेवल करा के मसल को देना, क्योंकि सिग्नल्स के फॉर्म में जो भी मैसेज है वो मसल ला रही है, और कहाँ से ला रही है? ये ब्रेन से ला रही है. ठीक है, ब्रेन जो बोल रहा है वो ये नर्व ला रही है, और ला करके किसको दे रही है? मसल को दे रही है. तो ये हो गया ब्रेन. ब्रेन ने जो बोला नर्व को, वो उसने मसल को बोला, और मसल से आपके काम परफॉर्म होते हैं, फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट मसल कॉन्ट्रैक्शन is initiated by the signal sent by the
नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो मतलब मेरा कहने का कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होना होता है तो सबसे पहले उसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है, बिकॉज एनी प्रोसेस हैव टू स्टार्ट, तो कोई ना कोई तो उसको बताने वाला चाहिए कि काम स्टार्ट करना है। तो ब्रेन आपको बताएगा। तो ब्रेन सेंड द सिग्नल बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन्स। किसके थ्रू भेजेगा? मोटर न्यूरॉन्स। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया, दीज आर द मोटर न्यूरॉन्स, बिकॉज दे कैरी द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड दे गिव टू द मसल, एंड दिस यूनिट इज़ नोन एज द मोटर यूनिट। ये जो पूरा यूनिट बन गया, दैट मीन्स कौन सा यूनिट? मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, इट इज़ कॉल्ड एज मोटर यूनिट। ये दोनों चीज़ों को मिला के मोटर यूनिट बोलते हैं। And the junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is known as neuromuscular junction. अब मैं आपको पता है what is sarcolemma? Sarcolemma is outer membrane of a muscle fiber. तो जो sarcolemma है muscle fiber की, that means ये इसी के साथ अटैच रहेगा ना, ये muscle fiber के जो sarcolemma है उससे न्यूरॉन। तो ये इन दोनों का जो यहाँ पर ये अटैचमेंट है, सपोज आई यूज़ द ग्रीन कलर, ये जो यहाँ पर अटैचमेंट है दैट इज़ कॉल्ड न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, बिकॉज हाफ पार्ट इज़ न्यूरॉन एंड हाफ पार्ट इज़ मसल। ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन। नाउ व्हाट हैपन्स इज दैट व्हेन एवर अ न्यूरल सिग्नल, सपोज ब्रेन ने कोई भी सिग्नल दिया, सपोज आपका हैंड किसी शार्प चीज़ पे पड़ गया, आपका हैंड या लेग वॉट एवर, तो फटाफट ब्रेन को ये चीज़ पता चलती है, वो सिग्नल भेजता है कि भाई पैर को हटाना है। और पैर कैसे हटाएंगे आप? विद द हेल्प ऑफ मसल, बिकॉज आपकी जब मसल्स मूव करेंगे तो सिग्नल जो देगा ये ब्रेन स्टार्ट करेगा, एंड दिस सिग्नल रीचेस टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ पर पहुँचेगा। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंड नॉब्स ऑफ द न्यूरॉन? यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इन द 10th स्टैंडर्ड, दैट दीज आर द एंड नॉब्स, दे आर प्रेजेंट हेयर। और ये यहाँ से कोई भी स्टिमुलस आएगा तो ये यहाँ से स्टिमुलस आया, डेंड्रॉन्स ने लिया, साइटॉन को दिया, एक्सॉन में आया, एंड देन इट कम्स टू द एंड नॉब्स। एंड व्हाट एंड नॉब्स डिड? एंड नॉब डज, एंड नॉब्स क्या करेंगे? यहाँ से कुछ केमिकल्स निकालेंगे, एंड दीज केमिकल्स आर नोन एज द न्यूरो ट्रांसमीटर। तो सेम हैपन्स हेयर ओनली, क्योंकि जैसे ही मैसेज गया कि भाई कोई पैर में हमें नेल चुभ गया है या कोई भी चीज़, शार्प चीज़, ऑब्जेक्ट चुभ गई है, तो ब्रेन ने मैसेज दिया न्यूरॉन को, न्यूरॉन मैसेज लेकर यहाँ तक आया, सार्कोलेमा के पास तक, दिस इज़ द जंक्शन, इट रिलीजेज न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या निकालेगा? एक केमिकल निकालेगा, एंड द नेम ऑफ दैट केमिकल इज़ एसिटाइल कोलिन, ACETYL, एसिटाइल CHOLINE, एसिटाइल कोलिन। दिस इज़ द नेम ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। सपोज आप कभी फॉरगेट कर जाएं, भूल जाएं, तो आप न्यूरो ट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर? इट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, दैट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज। जैसे अगर आपको पैर में चोट लग जाती है तो फिर क्या करते हो? अगर आपका छोटा ब्रदर या सिस्टर है, आप उसको बोलते हो कि जाके फटाफट मम्मी को मैसेज दे दो, मेरे को चोट लग गई है ना, फिर मम्मी हेल्प के लिए आपको आती हैं। तो इन द सेम वे ये मैसेज यहाँ पर जैसे ही जाएगा सार्कोलेमा के पास, इट स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर, ये पूरे मसल फाइबर में मैसेज स्प्रेड हो गया, एंड इट कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब ये जैसे ही मैसेज पहुँच गया सारा का सारा, यहाँ तक ट्रेवल कर गया जो मैसेज इसने दिया, तो अब जब मैसेज पहुंचा तो व्हाट विल हैपन? दैट सार्कोप्लाज्म, व्हाट इज सार्कोप्लाज्म? सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म विच इज फिल्ड इनसाइड द मसल फाइबर। एंड आपने यहाँ पढ़ा था कि दे हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह से ही क्या होते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दैट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स द कैल्शियम आयन, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। तो जो सार्कोप्लाज्म है इट रिलीजेस द कैल्शियम आयन, तो ये सार्कोप्लाज्म क्या रिलीज़ करेगा? कैल्शियम आयन रिलीज़ करेगा, बहुत सारे कैल्शियम आयन, एक दो नहीं है ना, बहुत सारा कैल्शियम आयन, यहाँ पर कैल्शियम 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 सारा आ गया into the sarcoplasm। and now this increased level of calcium ion what it does, ये क्या करेगा? it binds with the subunit of troponin। you have also studied the troponin structure, that day I have told you that suppose this type of structure is there, और यहाँ पर ऐसे ये 3 के में ऐसे बने हुए थे ना, these are present, तो they are present into the actin fiber। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम is combined with the troponin on the actin filament and they remove the masking of the एक्टिव साइट्स ऑफ द माइसिन। क्योंकि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, दैट डे यू हैव स्टडीड, तो जो एक्टिन फिलामेंट्स होते थे दे हैव द मास्किंग साइट। मास्किंग साइट्स मीन्स इफ़ वी चेंज द डायग्राम दिस वन सपोज, तो मास्किंग साइट का मतलब बच्चों होता था कि वो वहाँ पर
कुछ जैसे हमने कवर कर दी किसी चीज़ को कि सो दैट यहाँ पर इसका कनेक्शन ना बन सके, तो यहाँ पर एक कवरिंग सी हो जाती थी। तो अभी लेकिन जब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रोपोनिन, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि ट्रोपोनिन आर प्रेजेंट हेयर, आप पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर, तो वो उसको ओपन कर देता है, मतलब हट जाता है वहाँ से, अनमास्क कर देता है, वो साइट को ओपन कर देता है। जब साइट ओपन हो जाएगा, एक्टिव साइट ओपन हो जाएगा, तो जो मायोसिन है, ये दिस इज़ द मायोसिन, ये जो बना हुआ है थोड़ा थिक सा, दिस इज़ मायोसिन, दिस इज़ एक्टिन। तो अब ये जो इसका हेड है, ये भी स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो हेड है, दैट मीन्स कि ये अब नाउ इट इज़ रेडी टू बाइंड इट। तो यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ATP breaks down and releases the energy, and myosin head now binds to the exposed sites of actin. एक्टिन साइट की खुली पड़ी हुई जो साइट्स हैं, एक्टिव साइट्स हैं, उस पर ये हेड जो है जा कर के आराम से अटैच हो सकता है। तो नाउ क्या बन गया अब, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स, विच आई टोल्ड यू दैट डे कि एक्टिन और मायोसिन को तो साथ साथ ही काम करना पड़ता है। तो द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन, एंड क्या बना दिया, क्रॉस ब्रिजेस, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। ये क्या होता है क्रॉस ब्रिज, मुझे बताया था मैंने आपको, इस तरीके से एक्टिन एंड मायोसिन के साथ जो बीच में बन जाते हैं कनेक्शंस, दैट आर कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। तो अभी क्रॉस ब्रिज बन गया। आई रिमूव द इंक सो दैट यू कैन प्रॉपरली सी द डायग्राम। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज where you can see that this is the actin filament, this is the myofilament, and myofilament के अंदर ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर है, which you have studied that head, आपने पढ़ा था हेड होता है, क्रॉस आर्म्स होती हैं, टेल होती हैं, बिकॉज दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मायोसिन फाइबर। तो ये जो हेड वाला हिस्सा है, ये अभी तो अलग पड़ा हुआ है ना, लेकिन जैसे ही एक्टिव साइट रिमूव होंगी विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम प्लस ट्रोपोनिन, यहाँ पर वो प्लेस ओपन हो जाएगा, है ना, एक्टिव साइट ओपन हो जाएगी, और ये हेड जो है सेकंड कंडीशन में आप देख सकते हो बाइंड कर गया, इसके साथ अटैच हो गया ना एक्टिन के साथ में मायोसिन का हेड। एंड जब ये अटैच हो जाएगा तो ये हेड थोड़ा सा टिल्ट होता है, मतलब पीछे की तरफ ऐसे झुकता है, देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। एंड जब ये पीछे की तरफ थोड़ा सा झुक रहा है, तो ये क्या करेगा, साथ साथ जो ये मसल फाइबर इसके साथ अटैच हो चुका है ना अब ये वाला इसके साथ, तो जैसे ये इधर को झुक रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी किधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो जितना झुकता जाएगा ये इधर की तरफ आता जाएगा, और जब ये इस तरह से अंदर की तरफ आएगा, दैट मीन्स कि जो ये क्रॉस ब्रिजेस बन गए, ये जो क्रॉस ब्रिज बन गया है, it attaches the actin filament towards the center of the pulls the attached actin filaments towards the center of A band। अब अभी इसको हम इसकी हेल्प से भी समझ सकते हैं with this diagram also। तो और एक और भी है डायग्राम, दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, तो इसकी हेल्प से भी आप समझ सकते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज दैट जो ए बैंड है, इट अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन्स आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ वो भी आएंगे, जिसकी वजह से शॉर्टनिंग हो जाएगी, सार्कोमियर बिकम शॉर्ट। अभी यहाँ पर देखो दो फर्स्ट डायग्राम में, दिस इज द रिलैक्स्ड कंडीशन, रिलैक्स में ये अपर वन इज कॉल्ड मायोसिन एंड दिस इज एक्टिन, एंड दिस वन इज कॉल्ड मायोसिन फिलामेंट, जो बीच में दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड मायोसिन, दैट इज एक्टिन। तो आप देख रहे हो कि एजेस पे केवल इन्होंने थोड़ा सा कवर किया हुआ है, इट इज एच जोन, यहाँ पर कवरिंग नहीं है। बट लेटर ऑन व्हाट हैपन्स, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट होती, नाउ यू कैन सी द डिस्टेंस इज लेस, है ना, ये बीच की डिस्टेंस लेस हो गई, क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रहे हैं। कौन अंदर की तरफ आ रहे हैं, जो मैंने बताया क्रॉस ब्रिजेस जब बन जाते हैं, दिस पुल्स टुवर्ड्स द सेंटर, ये पुल करता है सार्कोमियर को अंदर की तरफ, फिलामेंट को, तो ए बैंड, सेंटर ऑफ ए बैंड में ये आना स्टार्ट करते हैं, बीच में आते हैं। एंड जेड लाइन विच इज़ अटैच टू दीज एक्टिन्स, दे आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड, जो जेड लाइन है फिर ये भी अंदर की तरफ पुल होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, सार्कोमियर बिकम शॉर्ट। अब देखो इसकी लेंथ इतनी सारी थी और इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी हो गई, क्योंकि ये अंदर आ गए, बाहर की तरफ नहीं एक्सटेंडेड है, और जितना ज़्यादा ये अंदर जाते जाएंगे, देखो ये और ज़्यादा सब ओवरलैप कर गए, इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया, तो क्या हो गया, ये और छोटी हो गई, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, दैट मीन्स शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर हो रहा है। तो शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन, एंड यू कैन सी इट वेरी इजीली इन दीज स्टेप्स दैट ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ मसल, और यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, द आई बैंड ऑल्सो गेट रिड्यूस। ये आई बैंड है ना, ये वाला देखो ये भी रिड्यूस हो रहा है, तो इट ऑल्सो गेट रिड्यूस, एंड वेर एज द ए बैंड रिटेन्स इट्स ओन साइड। ए बैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बैंड जो जितना था वो वैसे ही रहता है। एंड नाउ व्हाट हैपन्स दैट मायोसिन रिलीज द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इसको ये जो बने थे यहाँ पर क्रॉस ब्रिजेस, दीज क्रॉस ब्रिजेस, ये बहुत टाइम के लिए बच्चों नहीं बने रहते, आफ्टर सम टाइम जैसे ही एटीपी फिनिश होने लगता है ये हटने लगते हैं, दैट मीन्स दिस अटैचमेंट स्टार्ट्स ब्रेकिंग, ये फिर से ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे, दैट मीन्स जो मायोसिन है ये इसका हेड हट जाएगा। तो इसके पहले कि ये हटे,
अगेन 1 ATP रिलीज्ड एंड उसको फिर से एनर्जी मिल जाती है, जिससे कि वो अपनी वापस पोजीशन पे ना पाए और मसल को और अंदर कॉन्ट्रैक्ट करे। तो वो उसको और अंदर कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि जब कंप्लीटली मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स कि तब जो है ये रिलैक्स कंडीशन में जाएगा। एंड फॉर गोइंग इनटू द रिलैक्स कंडीशन व्हाट हैपन्स अगेन, that ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation keep on continuing. एंड ब्रेकेज के लिए भी द प्रोसेस, जैसे कैल्शियम आयन क्योंकि अगर नहीं निकलते तो ये क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं था। तो जब मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, आफ्टर मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म इज ट्रैप्ड बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि मसल फाइबर के अंदर आ गए थे ना सारे कैल्शियम आयन, ठीक है, जब आ गए थे, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया, पूरा मसल अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट मीन्स फंक्शन इज ओवर। देन व्हाट हैपेंस इज दैट after maximum contraction of muscle calcium ion from the sarcoplasm again go back to their place, कहाँ, जहाँ से आए थे, और कहाँ से आए थे, फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए थे। तो उनको वापस भेजा जाता है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देयर आर सर्टेन आयंस विच मॉलिक्यूल्स, यू कैन से नॉट आयंस, दैट मॉलिक्यूल्स, वो उनको पकड़ पकड़ के ले जाते हैं कि भाई जाओ अपनी जगह पर वापस, अब तुम्हारा काम फिनिश हो गया। और जो वो मायोसिन एटीपेज जो एंजाइम होता है उसको भी वो क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं। सो देयर इज़ नो एनर्जी इज अवेलेबल एंड नाउ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्सेस डिसोसिएट्स। अब यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं देयर इज़ अ डिसोसिएशन, है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर आप देखो डिसोसिएशन हो रहा है, ये अलग हो रहा है इसके साथ में, क्योंकि इनके हेड में ही मैंने आपको बताया था कि 2 साइट्स होती हैं। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि दे हैव 2 साइट्स, एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड ATP बाइंडिंग साइट, एंड दीज ऑल्सो हैव द they carry the enzyme ATP, तो मायोसिन एटीपेज, तो मायोसिन एटीपेज एंजाइम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो मसल रिलैक्सेशन भी तो होना है, पहले एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, छोटा हो गया साइज में, फिर क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भी तो जाएगा। तो उसको बोलते हैं मसल रिलैक्सेशन। और यू कैन से कि जो मसल रिलैक्सेशन है उसमें सारा ऑपोजिट हो जाता है, लाइक मसल रिलैक्सेशन में रिपोलराइजेशन हो जाता है वापस। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। एंड इन दिस वे दिस जो टिल्टिंग है, ये जो टिल्ट हो रहा है हेड, ये 2 टाइप्स के होता है। एक तो जैसे मैं बताया टिल्ट झुक रहा है, और एक होता है स्वाइवल मूवमेंट, मतलब ये ऐसे गोल भी घूम जाता है, एक बार को रोटेट भी हो जाता है। तो जब ये रोटेशन होता है तो भी जो है अनमास्किंग एक्टिन फिलामेंट की होती है। तो कैल्शियम आयन लास्ट में क्या कर दिए जाते हैं, दे आर सेंड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड फॉर जब ये ऐसा हो जाता है देन व्हाट विल हैपन, मास्किंग ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल अगेन अकर्स, क्योंकि फिर से एक्टिन मॉलिक्यूल जो यहाँ पर ये हैं इन पे फिर से मास्क आ जाता है। दैट मीन्स फिर से इसको कवर कर लेते हैं, जिससे कि मायोसिन जो फिलामेंट है इसके साथ कनेक्शन ना बना सके, अटैच ना कर सके। एंड दिस कॉजेज रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, दैट मीन्स रिलैक्सेशन। तो द रिएक्शन टाइम जो है वो फाइबर्स का अलग अलग होता है, कि हैंड की मसल, लेग की मसल जैसे जैसे भी करती हैं तो रिपीटेड एक्टिवेशन होता रहता है मसल फाइबर का, एंड दे कैन लीड टू द muscle contraction and the relaxation. So this theory is little bit complicated, but if you read it with your from your NCERT book and listen the this lecture, I hope you can easily understand this. Here there is a lots of diagram given. By the help of any diagram you can understand कि how they are relaxing and contracting. The upper one is known as actin and the center one, this one is known as the myosin filament, you can see. And these are the, this is the structure of basically sarcomere. तो sarcomere में muscle contraction, this is the contracted muscle and this is the relaxed muscle. तो this is the condition कि जब मसल रिलैक्स होती है, देखिए कितनी लंबी है, इतनी लंबी हो रही है ना, इतनी लॉन्ग है ये, और ये देखो कितना छोटा हो गया, क्योंकि अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, है ना, जो हमने अभी पढ़ा था कि किस तरीके से ये पुल कर लेते हैं इनसाइड, किनको पुल कर लेते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स, है ना, एक्टिन फिलामेंट्स को सेंटर की तरफ पुल कर लेते हैं। तो ये देखो ये सारे अभी ये दूर दूर है ना, ये एक्टिन, दिस इज द एक्टिन, दिस इज द एक्टिन। नाउ सी कितना डिस्टेंस है बीच में, गैप कितना ज़्यादा है ये वाला, और यहाँ पर गैप इज़ फिनिश्ड, बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको अंदर की तरफ खींच लिया। और कैसे खींचा? क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में क्या बने हैं, छोटे छोटे से क्रॉस ब्रिजेस बने, जो दे हैव नॉट शोन इन द डायग्राम बट दीज आर द क्रॉस ब्रिजेस। ये ऐसे क्रॉस ब्रिजेस बने हुए हैं, सारे क्रॉस ब्रिजेस रिमूव हो गए और ये दिख गया। अगेन आई विल ड्रॉ टू शो यू क्रॉस ब्रिजेस। तो दीज आर, यहाँ पर ये क्रॉस ब्रिजेस बन जाएंगे इनके बीच में। सपोज बहुत छोटी सी स्पेस है तो बताते नहीं बन रहा मुझे। सपोज दिस इज़ द एक्टिन, दिस इज़ द एक्टिन एंड here is the myosin filament, and this is again I am taking the black color, this is again actin. तो where
क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे इनके बीच में, ये यहाँ पर दीज आर द फिलामेंट्स, ये ऐसे बना लेते हैं यहाँ पर क्रॉस ब्रिजेस, है ना। और इनके मूवमेंट करने से ये अंदर की तरफ, ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है, तो मसल्स क्या होगी, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगी ना। तो लाइक दिस यू कैन आई थिंक अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट lecture. Thank you.